Hello students, today we will discuss the numerical problem, the three-stage compression with flash intercooler. A three-stage ammonia refrigeration system with flash intercooler operates between the overall pressure limits of 2 bar and 12 bar. The flash intercooler pressure are 4 bar and 8 bar. If the load on the evaporator is 10 TR, find the power required to run the system and compare the COP of the system with that of the simple saturation cycle working between the same overall pressure limit. So the student given that the two pressure limits 2 bar and 12 bar, this is the condenser pressure and evaporator pressure in which this cycle is work, and two intermediate pressure that these pressure are the pressure of the flash intercooler. So this is the 8 bar and this will be the 4 bar. So cycle will work between the 2 bar and 12 bar. Now we find the power required to run this cycle and the COP of the system when this system is implemented, where the flash intercooler is implemented, and only the simple vapor and COP of the simple vapor cycle which is work in between 2 bar and 12 bar, and compare these two COPs, COP with flash intercooler and COP of the simple vapor cycle which is work between 2 bar and 12 bar. Okay, so we start. The pH diagram of this system is, this is the pressure, this is the enthalpy. यहाँ पर आपकी एंथैल्पी है और ये प्रेशर है. सो दिस इज द पीएच चार्ट. बहुत ज़्यादा रोल है पीएच चार्ट का, सारी वैल्यूज़ हम पीएच चार्ट से ही देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी to understand the pH chart, and all of you have a data book of the refrigeration in which all the pH chart and all the table of the refrigerant are given. So students, cycle will work between the 2 bar and 12 bar. This is at 12 bar and this is at 2 bar. These are the pressure limits, and flash chamber 1 is at 4 bar and flash chamber 2 is at 8 bar. Okay, so the saturated vapor after the condensation, after the evaporation process, the exit at the evaporator is saturated form. The the refrigerant exit from the evaporator in the saturated vapor form. It enter into the compressor 1, मतलब lower compressor. This enter into the lower compressor. This is the process of the compressor. So this is the compression process 1 to 2. So we can find easily at 2 bar the enthalpy H1. Point 1 कहाँ तक ले जाएंगे आप इसको, सैचुरेटेड कर्व तक, और 2 बार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक, एक सैचुरेटेड वेपर लाइन तक, और वहाँ से हम H1 फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ द पॉइंट टू के लिए हमें कोई और टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा है, तो पॉइंट 2 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. वी ऑल नो एंड मैनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड द S1 इज इक्वल टू S2. एंट्रोपी, दिस इज द कॉन्स्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस. This is the constant entropy process. So S1 is equal to S2. Okay, so S1 we can find the S1 here. So the S1, that the entropy curve will pass through like this. So from this 2 point is at 4 bar flash chamber 1. So from the 4 bar we draw the straight line up to this curve. This is the entropy curve which is find by the point 1. So this is 2 point and we can find the H2. Similarly 3 point will lie, this is the 3 point, ये 1 ये 2, this is the 3 4 5 and 6. Okay, so 3 point, this is the 3 point. So we can find the 3 point. We draw the horizontal line from the 4 bar because the 3 point will lie at the 4 bar.
up to the saturated vapor line curve, and this is the H3 3 point. Similarly, S3 is equal to S4. Entropy will remain the constant because this is the compression process. ये इंटरमीडिएट कंप्रेसर में एंटर करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर हम S3 तो फाइंड आउट कर लेंगे। S3 कर्व ये है आपका, S3 कर्व दिस, और ये 4 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 4 पॉइंट विल लाई एट द प्रेशर 8 बार। सो वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन अप टू दिस कर्व, ठीक है। तो 4 पॉइंट हमें मिल जाएगा, वहाँ से हम H4 फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ द S5 8 बार पे ही 5 पॉइंट है ये, और सेचुरेटेड लाइन तक हम इसको ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज विद द 5 पॉइंट एंड वी कैन फाइंड द H4। S5 is equal to S6. Entropy will remain constant during the compression. This is the compression process 5 to 6. 6 point will lie at 12 bar, 12 bar से horizontal line draw की, and then find the point 6. So the correspondingly H6 we can find. So we can find the H1, H2, H3, H4, H5 and H6. Okay. H7 we can find the 7 point will lie at 12 bar, or this lie at the, this is the saturated liquid. So we draw the horizontal line up to the saturated, this is the saturated liquid curve. So we can find the SF7. SF7 is equal to H8, H9 and H10. So HF7 is equal to enthalpy will remain constant. All of you know in 3-stage compression with flash intercooler, the enthalpy will remain constant, okay, during this process. Okay, so we can find all the things, all the H1, then S1 is equal to S2 जैसे मैंने आपको बताया. After that we find the H2 at 4 bar, we can find H3, S3 find कर लेंगे. S3 is equal to S4, so we can identify the point 4 and then find the H4. Similarly at 8 bar H5 we can calculate H5 from here, and S5 is equal to H6, so we find the point 6 and then find the H6. HF7 we can find from here. HF7 is equal to H8, H9 and H10. Okay, so all we can find the enthalpy at all the point, and we need only the enthalpies to calculate the COP, to calculate the power required. Power required means the work done. So now we find the refrigerating effect and work done. So the mass, आप इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए जो थ्योरेटिकल बेस है, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है. वहाँ से आपका M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. सो वी कैन फाइंड द M1 इज़ द मास इंटर इनटू द एवेपोरेटर. ओके, इवेपोरेटर में इंटर हो रहा है मास M1, तो M1 हम क्या, इवेपोरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, M1 H1 माइनस H10, एंड देन H10 क्या है, H1 माइनस HF7. ओके, एंथैल्पी इवेपोरेटर में 10 to 1 चेंज हो रही है, तो चेंज इन एंथैल्पी इज दिस, और ये किसके बराबर है, HF7 के बराबर है. वहाँ से हमने M1 फाइंड आउट कर लिया. सो M1 विल बी दिस, क्या होगा, M1 H1 माइनस HF7, दिस इज इक्वल टू, हमें 10 TR दे रखा है रेफ्रिजरेटिंग लोड, यानी कि 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो उसको 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस इक्वेशन से हमें ये फॉर्मूला मिल गया. सो वी कैन कैलकुलेट द मास M1. द मास ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटेड इन द फ्लैश चैम्बर. फ्लैश चैम्बर में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का मास इंटर हो रहा है, या जो फ्लैश चैम्बर में इवेपोरेट हो रहा है, फ्लैश चैम्बर आपका ये लगा हुआ है, कंप्रेसर 1 से ये आपका वेपर आया, यहाँ से आपका ये लिक्विड आया, दैट इज़ द M2 मास, और यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हुई वहाँ से इवेपोरेट हुआ, और टोटल मास आपका M3 कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो M3 विल इंटर इनटू द इंटरमीडिएट कंप्रेसर. M1 आपका आया फर्स्ट कंप्रेसर से, लो प्रेशर कंप्रेसर से, और M2 आपका आया यहाँ कंडेंसर से इधर.
लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेट हो रहा है इन द फ्लैश इंटरकूलर में। ओके, सो द अगर हम यहाँ पर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम लगाएंगे फ्लैश चैम्बर पे, मैंने एक बार डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी में, आपको थ्योरी में देख लें। यहाँ पर क्या आ रहा है M1, यहाँ पर क्या जा रहा है M2 M3, और यहाँ पर इंटर क्या हो रहा है M2। ओके, दिस इज़ द पॉइंट 2 आई थिंक M1, दिस इज़ द पॉइंट 3 एंड दिस इज़ द पॉइंट 9। तो वहाँ से अगर आप इस थर्मल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, एक बार आप वहाँ देख लेना, ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा M1 H2 प्लस M2 H9 इज इक्वल टू M3 H3। इस M3 को आप लिख सकते हैं M1 प्लस M2, और इसको लिख सकते हैं HF7। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, एक बार आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तो वहाँ से M2 की वैल्यू ये आएगी M1 H2 माइनस H3 माइनस HF7। ओके, तो M1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, H की हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा M2 विल कम। ओके, सो okay, so we can find the M2 here। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से M3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। M3 की वैल्यू आ गई आपके पास, एंड M4 इज द मास ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटेड इन द सेकेंड आपका ये लगा हुआ है। यहाँ पर एक यहाँ से जा रहा है, ये आपका हाई इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर है, ये 0.3 पे इंटर कर रहा था, 0.4 पे ये निकलेगा, और 0.4 पे ये निकलेगा, 0.5 ये होगा, और 0.78 ये होगा। तो यहाँ पर अगर आप थर्मल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो M4 इज़ द मास इवेपोरेटेड इन द फ्लैश चैम्बर सेकेंड। ओके, तो वहाँ से M4 की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, M3 टाइम्स दिस क्या होगा आपके पास, M3 मास यहाँ से इंटर होगा फ्लैश चैम्बर में, M5 मास यहाँ से निकलेगा, और M4 मास यहाँ पर इंटर करेगा। तो M3 इंटू H4 होगा, यहाँ पर 4 पॉइंट होगा, ये आपका 8 पॉइंट होगा। तो M4 इंटू H8 ये इंटर कर रहे हैं, इज इक्वल टू M5 इंटू H5। M5 को आप लिख सकते हैं M3 प्लस M4। तो वहाँ से M4 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं पूरा लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ इन थ्योरेटिकल पोर्शन। सो वी कैन कैलकुलेट द H4 फ्रॉम हेयर। M3 is given as all the enthalpies are given, so not given, we have find out these. So this is the M4. Okay, so M5 we can summation of this. So the वर्क डन इन द लो प्रेशर कंप्रेसर आपका क्या है 1 to 2, तो एंथैल्पी चेंज हो रही है 1 to 2, सो H2 माइनस H1 मास फ्लो हो रहा है, दैट इज द M1। सो M1 टाइम्स ऑफ दिस, M1 इज गिवन, ऑल द थिंग्स आर वी हैव कैलकुलेटेड, सो वी कैन फाइंड द वर्क डन। इंटरमीडिएट प्रेशर वर्क डन हमारा कहाँ हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर हो रहा है 3 to 4। ओके, तो एंथैल्पी चेंज हो रही है H4 माइनस H3, इसमें जो मास फ्लो हो रहा है दैट इज M3। ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दिस। सिमिलरली द वर्क डन इन द हाई प्रेशर कंप्रेसर, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर M5 मास फ्लो हो रहा है 5 to 6, तो एंथैल्पी विल चेंज फ्रॉम 5 to 6। ओके, तो H6 माइनस H5 मास फ्लो हो रहा है, इसमें मास फ्लो विल बी M5। okay, तो M5 times of this all things we have calculated, so this is the work done. Total work done we can find out the summation of all these three work done, this will be the total work done. Now the power will be in kilowatt, so 436.5 kilojoule per minute, we can change it in kilojoule per second, तो 436.5
upon 60 kilojoule per second. This kilojoule per second is kilowatt. ठीक है, okay. So the power will come in kilowatt. The power will come in kilowatt divided by 60. Now the refrigerating effect will produce in the evaporator. तो evaporator में मास फ्लो क्या हो रहा है हमारा m1 और एंथैल्पी चेंज हो रही है 10 to h1 और दिस इज हम यहाँ से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा किसके बराबर होगा 210 Q एंड Q इज 10। ओके, तो यहाँ ये भी है और आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो COP will be the refrigerating effect upon work done, so this will be the COP. Now we compare the COP with the simple vapor absorption cycle. Simple vapor absorption cycle दो प्रेशर के बीच में वर्क करती है, that is the 2 bar and 12 बार। इस क्वेश्चन में गिवन है 2 बार एंड 10 बार। अगर इन दो के बीच में हमारी साइकिल वर्क कर रही है तो हमारा ये 0.1 होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.3 होगा और ये 0.4 होगा। एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम दिस। तो ये तो सेम है हमारा यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू H7। ओके, HF7 ये तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू HF7। ये पॉइंट सेम है, H1 जो है वो 2 बार पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले कंप्रेशन आपका 3 उससे जा रहा था, लाइक दिस, फिर दिस और फिर दिस, तो यहाँ पर आ रहा था, इनका समीशन हो रहा था। अब कंप्रेशन डायरेक्ट हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, तो ये दिस पॉइंट विल बी चेंज, 2 पॉइंट विल बी चेंज, उसको हमने नाम दे दिया 2 डैश। और यहाँ से हम 12 बार से इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? S1 पॉइंट पता चल जाएगा, S इसकी एंथैल्पी हमें पता ही है, पहली वाली होगी 2 बार पे और सैचुरेटेड कर्व तक ले जाएंगे और ये जो आएगी H1 दैट विल वी हैव फाइंड आउट ऑलरेडी। तो S1 इज इक्वल टू S2, दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये वही चीज़ है, यहाँ से कर्व पास होगा, कहाँ तक ले जाएंगे 12 बार के हॉरिजॉन्टल को सैचुरेटेड, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंथैल्पी होगी दैट इज H2 डैश। तो 12 बार पे हम H2 डैश फाइंड आउट कर लेंगे। वर्क डन क्या होगा, मास फ्लो सेम होगा इसमें। वर्क डन क्या होगा, मास फ्लो जो इवेपोरेटर में हो रहा है वही इसमें होगा, दैट इज द M1 इंटू H2 डैश माइनस H1। ओके, तो M इज द मास फ्लो रेट, तो M1 we know the what is the M1, H1 H2 dash we have calculated and H1 dash, so we can find out the work done। वर्क डन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वही होगा, 10 TRE कैपेसिटी है इसकी, तो 210 इंटू 10 दैट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। सो चेंज इन COP आपकी पहले क्या थी, पहले 4.8 थी, नाउ द COP इज now the COP is 4.375. so change in the COP percentage increase 4.81 minus 4.375 किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल वेपर साइकिल के रिस्पेक्ट में। so this will be the percentage change in the COP when we implied the flash intercooler। ओके, अगर हम सिंपल साइकिल लें तो हमारी COP कम आएगी, और अगर हम फ्लैश इंटरकूलर लगा रहे हैं, उसमें 2 फ्लैश इंटरकूलर लगा रहे हैं, 3 स्टेज कंप्रेशन कर रहे हैं, तो हमारी COP इंक्रीज़ हो रही है 3 स्टेज कंप्रेशन से। तो